Good morning, all of you. Subject Security Analysis Portfolio Management, Class TWABF. We are solving portfolio revision and portfolio evaluation sums. In portfolio evaluation, we have details of three portfolios, that is 1, 2, and 3. As you can see, the market index is also having an average return of 12%. This will be useful. Market index will be useful in calculating Jensen. And also you can calculate the Sharpe ratio because you have standard deviation for market index also, as well as you have beta of market, that is Ma'am, we 1.2. can't see the screen. Okay. Again, I will repeat, the details of three portfolios are given below. Portfolio 1, 2, and 3, you have average returns of all three portfolios, and the risk of three portfolios, that is total risk of all three portfolios. Total risk is standard deviation, and only the systematic risk which we cannot avoid is calculated by beta, and beta is 1.25 for first portfolio, which is unavoidable risk, and 0.75 times for second portfolio, and 1.1 times for third portfolio. And for the market, the beta is 1.2. Normally the beta of market is 1, but in this question they have beta of 1.2. The risk-free return is 9%. That is stable return on government securities, which government is paying is 9. And this is a stable return which one expects from the market. Portfolio 1 average return is given. This is the return on portfolio, average return on portfolio 1. Standard deviation we can use in Sharpe measure, beta we can use in trainer measure. First formula, Sharpe measure. What is the formula of Sharpe measure? Anybody? What is the formula of Sharpe measure? Average return minus risk फ्री रिटर्न. अभी यहाँ पे ही आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. 15 में से 9 माइनस करो. आरपी, दैट इज एवरेज रिटर्न, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. एवरेज रिटर्न दिख रहा है ना 15 यहाँ पे, उसमें से 9 माइनस करो. एवरेज रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करना है. 15 minus 9, 6. 6 upon standard deviation 0.25. 6 divided by 0.25. What is the answer? Write in chat box. Yes, these questions will come in internal exam. Yes, सेकेंड यूनिट में आता है. जो भी सेकेंड यूनिट का है वही पढ़ा रही हूँ मैं. एफएम का मैंने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट खत्म किया है, इसका अभी सेकेंड यूनिट ही चल रहा है. ये भी इंटरनल का पार्ट है, तो इंटरनल आपका अच्छा जाएगा. सिर्फ फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद. एवरेज रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है. वो हो गया आपका शार्प मेजर, दैट इज 24%. शिफाली शाह एंड प्राची जैन, राइट आंसर 24%. Now for second portfolio, calculate the Sharpe measure. 12, average return is 12 minus risk-free return, 12 minus 9, 3. 3 divided by standard deviation 0.30. Three divided by 0.30, that is 10.
ठीक है, 3 divided by 0.30 that is 10. Next, return, average return is 10% minus risk-free return. 10 minus 9. 10 minus 9. 1. 1 divided by standard deviation 0.25. What is the Sharpe measure for third portfolio? One answer. 1 divided by 0.25 कितना होता है? 4 होता है. 4. एक मिनट. हाँ, 4 आएगा ना. अच्छा, 0.25 नहीं है, 0.20 है. ठीक है, 1 डिवाइड बाय 0.20 है, तो ठीक है, 5 बराबर है. 10 माइनस 9 1. 1 डिवाइड बाय 0.20 5. 5 इज राइट आंसर. ओके, अभी मार्केट इंडेक्स का आप क्या शार्प मेजर फॉर मार्केट इंडेक्स निकाल सकते हो? सेम करना है ना, एवरेज रिटर्न लेना है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न. 12 माइनस 9, मार्केट इंडेक्स का एवरेज रिटर्न यानी निफ्टी का एवरेज रिटर्न 12 है, उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस डिवाइडेड बाय 0.25. divided by 0.25. What is the answer? Twelve. Answer is 12. Okay. ठीक है, अभी ये हो गया शार्प मेजर हमने फर्स्ट. अभी रैंकिंग करनी है शार्प मेजर की, इसका रैंकिंग करेंगे. फर्स्ट रैंक 24% हाईएस्ट शार्प मेजर, रैंक 1. सेकेंड रैंक 2 10%. थर्ड रैंक 5%. Okay, is it clear to all of you? Highest rank given to sharp measure, highest percentage in sharp measure ratio portfolio is giving you 24% extra returns, 24%. So first rank, next is second portfolio, and last is third portfolio, rank 3. Now we will do it for trainer. ट्रेनर का भी हमें करने को आता है. ट्रेनर रेशियो के लिए क्या करना है? 15 लेना है माइनस 9. 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1.25. बीटा से डिवाइड करना है. व्हाट इज द आंसर? 15 minus 9 6. 6 divided by 1.25 beta. 6 divided by 1.25 beta. Answer, right answer in the chat box. 6 divided by 1.25. 4.8. ट्रेनर में भी एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न है, और डिवाइड में बीटा करना है, डिवाइड बीटा. ठीक है, फर्स्ट आया 4.8. नेक्स्ट सेकेंड पोर्टफोलियो 12 minus 9 3. 3 divided by 0.75. 0.75. 4. Answer is 4. 10 minus 9 divided by 1.10. 10 minus 9 divided by 1.10. 0.909. Next, 12 minus 9
डिवाइड बाय 1.10 1.2 2.5. ओके, 12 minus 9 divided by 1.20 2.5. Now write the ट्रेनर रेशो आप निकाल के इसका भी कर सकते हो. ओके, सो नाउ फर्स्ट रैंक फॉर हाईएस्ट ट्रेनर इंडेक्स 4.8 सबसे ज्यादा है, तो रैंक 1. 4 सेकंड नंबर पे है, सेकंड रैंक. लास्ट थर्ड पोर्टफोलियो 0.9090 है, तो थर्ड रैंक. नोट डाउन ऑल ऑफ यू. TYBMS का ये लेक्चर नहीं है. TYBMS का जो लेक्चर चल रहा है वही ज्वाइन कीजिए. वहां पे कौन सा लेक्चर चल रहा है? OR का चल रहा है ना आपका. हाँ, कोई और लेक्चर चल रहा है वहां पे ज्वाइन करो. ये लिंक भूल से यहाँ पे आ गई है. मेरी लिंक वहां पे बाद में आई थी. 8 o'clock की लिंक थी, लेकिन मेरा इंटरनेट चालू नहीं था, इसलिए अभी पहुंची है वो लिंक. वो लेक्चर हो भी चुका है GST का. ठीक है. नेक्स्ट, जेंसन मेजर. अभी जेंसन मेजर के लिए हम लोगों को पहले RP याद रखना है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. ये एवरेज रिटर्न है. सबसे पहले CAPM से कैलकुलेटेड रिटर्न निकलते हैं. याद रहेगा. जेंसन डिफरेंशियल मेजर का क्या मतलब होता है? जेंसन डिफरेंशियल मेजर मींस वी विल कंपेयर द एक्चुअल रिटर्न जो हमें रियलाइज हुए हैं. एक्चुअल रिटर्न को हम कैलकुलेटेड रिटर्न जो CAPM से यूज करके हम कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को. ठीक है. ये एक्चुअल रिटर्न्स हैं, देखो यहाँ पे. ये सबसे लास्ट में हम लोग एक्चुअल रिटर्न माइनस कैलकुलेटेड रिटर्न करेंगे. सबसे पहले CAPM से हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले रिस्क फ्री रिटर्न हम लोगों को रिक्वायर्ड है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है ना यहाँ पे. रिस्क फ्री रिटर्न 9%. उसके बाद हमें बीटा चाहिए. एक एक पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए, है हमारे पास. RF हो गया, बीटा हो गया. ठीक है, दो चीजें हो गई, रिस्क फ्री रिटर्न और बीटा. अभी हमें रिटर्न ऑन मार्केट चाहिए. ब्रैकेट के अंदर क्या है? RM. RM मतलब रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स, यानी निफ्टी के रिटर्न्स कितने हैं क्वेश्चन में? 12%. यहाँ पे दिख रहा है. ये कॉमन है तीनों पोर्टफोलियोज में, आपको RM 12 ही लेना है. ठीक है. RM यानी रिटर्न ऑन मार्केट, दैट इज निफ्टी 50 स्टॉक्स का कितना परफॉर्मेंस है? 12%. 12 माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, यानी ये जो 9 है इसको माइनस करना है. 12 - 9. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको. 12 - 9 को ब्रैकेट के अंदर, और बाहर लेफ्ट साइड में बीटा मल्टीप्लीकेशन में, और बीटा के पहले RF. RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF ब्रैकेट के अंदर. 12 - 9 3. सब जगह पे 3 और बीटा से मल्टीप्लाई होगा. अभी 3 इंटू 1.25 कितना आएगा? 3.75. 3 कैसे आया? 12 - 9 ब्रैकेट RM माइनस RF. RM is 12, RF is 9. 12 - 9 3. 3 into beta 1.25. 3 into 1.25 3.75 प्लस RF. 3.75 में 9% ऐड करो. आंसर क्या आ रहा है?
3.75 कैसे आया मालूम है ना? 12 माइनस 9, 3, 3 इंटू 1.25, 3.75, 3.75 में 9% ऐड करो, 12.75। तो कैलकुलेटेड रिटर्न 12.75 आया, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.75 है फर्स्ट पोर्टफोलियो का। वापस रिपीट कर दूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल को यूज करके। उसकी फॉर्मूला है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सी ए पी एम। उसके बाद 9 प्लस 1.25 इंटू 12 माइनस 9, 12.75। ओके, और फर्स्ट पोर्टफोलियो में आपको एक्चुअल रिटर्न 15 मिल रहा है, 15 माइनस 12.75 इज 2.25। यू आर गेटिंग extra returns of 2.25. You are expecting less. You are expecting only 12.75, but you are getting actually 15%. That means 2.25% you are getting extra. Are you getting my point? Your actual return is greater than the expectation. यही तो हम चाहते हैं। चलिए सेकंड पोर्टफोलियो का करते हैं। समझ में आया सबको? सेकंड पोर्टफोलियो का आपको बताना है। सबसे पहले आर एम माइनस आर एफ करो। आर एम 12 माइनस आर एफ 9, 12 माइनस 9, 3, 3 इंटू 0.75। सेकेंड का बीटा देखो कितना है, सेकेंड पोर्टफोलियो का 3 इंटू 0.75, 3 इंटू 0.75, 2.25। ठीक है, बराबर 2.25 आया ना, उसमें आर एफ वापस से प्लस करना है, प्लस करना है 9 प्लस 9, 11.25 बराबर। अभी आप देखो, आपने एक्सपेक्ट कितना किया था? 11.25 एक्सपेक्ट किया था विद CAPM फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने निकाला, एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है? तो आप क्या लिखोगे? 12 माइनस 11.25। यू आर गेटिंग 0.75 एक्स्ट्रा। ओके, कैसे आया? 12 माइनस 9, 3, 3 इंटू बीटा 0.75, 3 इंटू बीटा किया तो 3 इंटू 0.75, 2.25 आया, 2.25 में 9 प्लस किया, 11.25 आया, 11.25 को 12 में से माइनस किया। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस एंड एक्चुअल रिटर्न आर ग्रेटर। यही तो चाहिए ना हमें, एक्चुअल रिटर्न मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। 12 माइनस 11.25, 0.75 आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा इन सेकेंड पोर्टफोलियो नंबर 3। अभी थर्ड भी आपको करने को, इसके पहले आप नोट कर लीजिए सेकेंड का 11.25, और यहाँ पे आप लिखोगे 12 माइनस 11.25 एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न्स 0.75%, so it comes extra return of 0.75. Okay, next थर्ड पोर्टफोलियो का करना है। थर्ड पोर्टफोलियो का 10 है एवरेज रिटर्न, इसको लास्ट में लेंगे। हमें मार्केट इंडेक्स से मतलब है, आर एम माइनस आर एफ पहले करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है? आर एम माइनस आर एफ, CAPM की फॉर्मूला में आर एम क्या है? 12, आर एफ क्या है? 9, 12 माइनस 9, 3। ठीक है, 3 इंटू थर्ड पोर्टफोलियो का बीटा 1.10, 3 इंटू 1.10, 3.30। ओके, 3 आया ना आंसर, उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो, पोर्टफोलियो के बीटा से मल्टीप्लाई।
3.30। अभी इसमें RF प्लस करो, 9 प्लस करो 12.3, यानी एक्सपेक्टेशन 12.3 है, लेकिन कितना मिल रहा है? क्वेश्चन में कितना दिया है? एक्चुअल रिटर्न दिखा? कर्सर कहाँ पे है? यानी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, 12.3 की है, और एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 10 मिल रहा है। आप मुझे बताओ कितना नेगेटिव में आ रहा है? -2.3, यानी हमें 2.3 कम मिल रहा है। 2.3% माइनस साइन आ गया। इज इट क्लियर? 12.3 एक्सपेक्टेड है और हमें मिल कितना रहा है? -2.3, यानी कम मिल रहा है। एक्चुअल रिटर्न्स आर लेस देन द एक्सपेक्टेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट। अभी लास्ट में हम क्या करते हैं? रैंकिंग। सबसे ज्यादा रिटर्न्स, एक्स्ट्रा रिटर्न्स ज्यादा किसमें मिल रही है? फर्स्ट पोर्टफोलियो में, तो फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक टू रैंक, सेकंड रैंक पोर्टफोलियो 2। थर्ड रैंक नेगेटिव रिटर्न्स है, इसके लिए लास्ट रैंक इसको दिया है, रैंक थर्ड टू थर्ड पोर्टफोलियो। इज इट क्लियर व्हाट इज जेनसेन डिफरेंशियल मेजर? अभी आप कर सकते हो एग्जाम में। जेनसेन, ट्रेनर, शार्प, इस सम के अंदर तीनों हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये यूनिट 2 में आता है। यूनिट 2 मतलब वो एग्जाम में तो आएगा ही। जनवरी में हम लोग रहेगा आपका एग्जाम, मिड जनवरी, मिड में। ठीक है, तो रिवीजन, जब हम पोर्टफोलियो की इवैल्यूएशन करते हैं तो ये रेशियोज को यूज करते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं वो पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए रेशियोज बनाए हैं। जैक ट्रेनर, ठीक है, और शार्प मेजर को शार्प रेशो इसलिए नाम पड़ा, उस पर बंदे का नाम ही शार्प था। ठीक है, और ट्रेनर क्यों पड़ा? ट्रेनर ने ही ये बनाया था, जैक ट्रेनर करके था, उसने ये इंडेक्स डेवलप किया था जिसमें उसने बीटा का, बीटा ऑफ द फंड को लिया, और उसने बोला कि मैं ये रेशोज पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। और जेनसन मेजर, जेनसन बंदे का नाम जेनसन था जिसने ये डेवलप किया, तो जिन्होंने डेवलप किया है उनका ही नाम रखा है। इट वॉज डेवलप बाय माइकल जेनसन। जेनसन नाम क्यों पड़ा इसको? माइकल जेनसन ने डेवलप किया था। इसने डिफरेंशियल रिटर्न मेथड रखा था। द सरप्लस बिटवीन द टू रिटर्न्स इज कॉल्ड एज अल्फा। जो आपने डिफरेंस निकाला ना नीचे, ये वाला, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। अल्फा, अल्फा का मतलब होता है जेनसेन डिफरेंशियल मेथड। जेनसेन डिफरेंशियल मेजर से हम लोग अल्फा निकालते हैं। अल्फा अगर पॉजिटिव आया तो उसको फर्स्ट रैंक बोलेंगे, और जिसका नेगेटिव आएगा उसको हम लोग लास्ट रैंक पे रखेंगे। तो शार्प मेजर वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर शार्प, ओके, and trainer was developed by Jack Trainer, and last Jensen measure was developed by Michael Jensen, okay, and the calculation is called as RP minus actual return minus calculated return is also called as alpha. Higher alpha means superior performance of the fund and vice versa. Higher 2.25 is higher, ठीक है, it is a higher alpha which is a superior performance of first portfolio. Okay, what is the limitation of alpha? When we are calculating alpha, we are only taking beta, that is the systematic risk. We are avoiding the total risk. Okay, we are not taking entire risk in the calculation. We are only taking beta and
we are avoiding unsystematic risk. Okay, so this is a limitation of alpha measure. Sharp measure is best because it is taking the total risk of the stock, but whenever we are using beta, we are only taking the systematic risk of the market. So the limitation of trainer index is only you are taking beta in the calculation, that is systematic risk, for calculating the portfolio performance. कल हम लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे, जिसमें से इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी सेकंड यूनिट के. थैंक यू so much for attending. I hope you have understood each and every concept.